Namaskar and welcome to yet another episode of Bright Talks by Pacholi Aesthetics and Wellness, an initiative by Dr. Preeti Seth. And I'm your host, Dr. Divya Agarwal, Head Process Development and R&D. And we are here to talk about a topic that interests all lives and touches all hearts: mental health. Yes, mental health is an issue which interests all these days, but nobody is ready to talk about it. A healthy mind paves way to a healthy body, but the reverse is also true. In a healthy body resides a healthy. We are today with two of our wonderful hosts and guests who will be discussing about mental health concerns. And their expertise and refined knowledge will be of great help today. So we have Dr. Rekha Malhotra with her 45 years of dedicated practice and a young dynamic individual, Dr. Pooja Gupta, who is clinical psychologist with Rainbow Children's Hospital, New Delhi. So Dr. Namaskar. Namaskar, Dr. Pooja. So Doctor, I first want to understand from you, in your 45 years of experience, what are the misconceptions you feel you have been experiencing in your day-to-day practice? To begin with, there's a big stigma about consulting a mental health professional. Everyone is worried about physical health. Actually, mental health का concept किसी के दिमाग में है ही नहीं. Healthy होना मतलब कि खांसी जुकाम बुखार ना होना. लेकिन कोई वरी टेंशन या डिप्रेशन एंजाइटी होता है तो जब तक पानी सर से ना गुजर जाए कोई प्रोफेशनल की हेल्प की सीख नहीं करता. सेकेंडली, जब मेरे पास रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो पीपल फॉर एग्जांपल कपल काउंसलिंग, तो हर कोई ये सोचता है कि आई एम ओके बट इसको ठीक कर दीजिए, इसको समझा दीजिए. वो दे थिंक कि प्रोफेशनल काउंसलिंग मीन्स कि समझा देना कि ये ठीक नहीं कर रहे तुम. सो दिस इज अ बिग हर्डल इन getting through the sessions or through helping people out and the way we go through the process professionally. Certainly. So the biggest misconception I feel is that people still do not want to seek help and they are unaware when to seek help. So before we take our next question, I would request all our lovely viewers to please tap onto the heart button and shower us some love. So Dr. Pooja, what are the warning signs that you feel a person must be aware of when they have to think about mental health and mental health for themselves and mental health for their loved ones? Right. A very good and important question, I would say, because जब तक हम समझेंगे नहीं कि पहचानना कैसे है तो हम उसको सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे. राइट. सो आई थिंक अगर मैं बहुत बेसिक चीज़ की बात करूं एंड बहुत इम्पॉर्टेंट जो हम देख सकते हैं और इजी भी है अपने आप में और बाकी लोगों में देखना, फर्स्ट वुड बी मूड. है ना, बहुत बार क्या होता है कि हम जो इंसान बहुत अच्छे से खुशी से रह रहा था, फिर एकदम से चीज़ों पे बहुत जल्दी इरिटेबल हो जाना, स्नैप करना, ये सब चेंजेस हम देख सकते हैं. दूसरा मैं बोलूँगी स्लीप एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा लिंक्ड होता है. तो समबडी हु यूज्ड टू स्लीप गुड 7-8 आवर्स बट अब वो कम सो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन की जो बीमारी होती है उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं, जिसको हम हाइपरसोमनिया भी बोलते हैं. तो सेकेंड थिंग इज स्लीप यू कैन लुक आउट फॉर. थर्ड आई वुड से एपेटाइट. बहुत सारे लोग जब किसी मेंटल हेल्थ डिफिकल्टी से जूझ रहे होते हैं तो क्या होता है कि भूख उनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उनको खाना खाने का मन नहीं करता है ना. और कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा खाने लग जाते हैं. मैं बहुत इमोशनल डिफिकल्टी से गुजर रही हूँ तो मेरी भूख, मैं ज़्यादा जंक खाने लग जाऊंगी या ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने लग जाती हूँ. तो ये बहुत ईजी चीज़ें हैं जो हम अपने आप में भी नोटिस कर सकते हैं और अपने आसपास जो लोग हैं उनमें भी हम नोटिस कर सकते हैं. Okay, thank you so much, Dr. Pooja. And before we next go to the third question, I would request all the viewers to keep
showering their questions as well in the comment box, and that we will be taking at the end of the session. And as Dr. Pooja rightly said, if there is any change in behavior, maybe you are eating more now, or maybe eating less, sleeping more now or sleeping less, all these are the warning signs you should look for in yourself and in your loved ones. So Dr. Rekha, stress is a constant companion in our lives these days. So how does stress impact the mental health? Stress is a part of everyone's daily life, as well as overall living today in our urban situation, the way we do. And this has a serious impact on mental health in the sense that our ability to focus and concentrate is affected. Ability to feel happy or enjoy activities which we indulge in, that also decreases. We don't feel very happy doing our hobbies, or we don't take interest in people. So this way stress will affect the mental health a great deal, and thinking gets disturbed, or we cannot constructively organize our work schedule and so on. So wonderful insight, doctor. So now we know that stress means that you are not able to concentrate like you were able to do before, and definitely it's a condition which we should be aware of and we should work towards it. Dr. Pooja, what are the practical strategies you would suggest that one can implement to take care of stress and maintain a perfect work-life balance? Not perfect, but in a better work-life balance. राइट सो लाइक यू सेड परफेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट वी कैन ट्राई आवर बेस्ट जितना हम कर सकते हैं. सो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि स्ट्रेस इज वेरी इनएविटेबल. स्ट्रेस से नो बडी कैन रन फ्रॉम स्ट्रेस. द लाइफ स्टाइल वी आर लिविंग, जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसमें स्ट्रेस एक बहुत जैसे बोलते हैं ना कि एक पार्ट बन चुका है हम सबकी लाइफ का. तो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्ट्रेस विल बी देयर. हम पूरा इरेडिकेट नहीं कर सकते उससे, बट हम उसके साथ कोप कर सकते हैं. हाउ वी कैन कोप विद इट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस पे थोड़ा सा अगर फोकस करें तो इट कैन मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट. जैसे कि अभी मैंने बताया स्लीप है ना, तो स्लीप बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि आप एक अच्छी 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए स्ट्रेस को अगर हमें फाइट करना है तो. दूसरा, बिल्ड अ गुड सपोर्ट सिस्टम. एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है. आप लोगों ने भी खुद नोट करा होगा, जिस दिन आपको बहुत टेंशन हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बट आपके पास लाइफ में वो कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस या कोई एक फ्रेंड जिसके साथ आप वो चीजें डिस्कस कर सकते हो. हम अपनी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं वेंटिंग आउट. जब आप वेंट आउट कर लेते हो तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है, आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा. सो बिल्ड अ गुड सपोर्ट सिस्टम, है ना. अगर ऐसा नहीं है कि बहुत ह्यूज सपोर्ट सिस्टम ही चाहिए, आपके गिने चुने 2-3 लोग भी होंगे, दैट विल बी मोर देन एनफ. तो ये छोटी छोटी चीजें पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे. डाइटरी चेंजेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट जस्ट नॉट इम्पैक्ट योर फिजिकल हेल्थ but mental health also, and researches are showing that the food has a good impact on mental health. So these are few changes if we can make, it will be a significant change for you. Wonderful insight. As Dr. Pooja has rightly said, we need a holistic balance. Diet also influences our stress levels, and so does a healthy mind paves way to eating more and hogging more. So there should be always an apt balance, which Pacholi also truly believes in. And for all those who have joined us right now, this is Dr. Divya Agarwal, your host today for Bright Talks by Pacholi Aesthetics and Wellness, an initiative by Dr. Preeti Seth. And we have with us two incredible, wonderful doctors with us, Dr. Rekha Malhotra and Dr. Pooja Gupta, who is a clinical psychologist from Rainbow Children's Hospital. So, Dr. Rekha, we are hearing mindfulness concept these days. So, what is this mindfulness? क्या है इसके benefits on mental health? Mindfulness समझने के लिए आप सोचिए, जब आप कहते हैं ओ are you out of your mind, या I was absent minded, तो इसका opposite लीजिए कि mindfulness is being present with oneself, being aware of one's body and mind. That is mindfulness.
totally aware of what is happening inside you. So that mindfulness has a great impact on the body, because whenever you know what you are doing, you are in the present moment, it helps you a lot in moving forward in life. Okay, wonderful. So, Dr. Pooja, I mean, social media के क्या बेनिफिट्स हैं एंड कैसे सोशल मीडिया के साथ जो स्ट्रेस एसोसिएटेड है एंड मेंटल हेल्थ एसोसिएटेड है उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं? प्लीज आई वुड लाइक यू टू स्ट्रेस ऑन दैट, बिकॉज सिंस यू आर अ यंग डायनामिक पर्सनालिटी, योर फ्रेंड सर्कल ऑल मस्ट बी फेसिंग दैट थिंग एंड our viewers also must be interested in that. Certainly Dr. Divya, this is actually, मैं बोलूँगी कि आजकल की जैसे बोलते हैं ना, every second client or patient of mine is coming with this issue, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरत भी बन गया है, हम इसको बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते. A lot of people are actually dependent on technology, उनका काम ही टेक्नोलॉजी से चल रहा है. But yes, we cannot ignore the side effects of this as well, of the technology. So how do we create a balance, right? So first of all we need to be, जैसे कि अभी मैम ने mindfulness की बात करी कि it opposite of out of the mind, कैसे कि we need to be present at the moment, we need to be aware. How can we imply this here is कि आप थोड़ा सा अगर awareness create कर देंगे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इंस्टाग्राम में भी आपको एक ऑप्शन दे रखा है जहां पर आप देख सकते हो कि आप दिन में कितना यूज कर रहे हो इंस्टाग्राम, एंड एवरी स्मार्टफोन हैज दिस फीचर वेयर यू कैन एट द एंड ऑफ द डे गो एंड सी कि मैंने इंस्टाग्राम पे कितना टाइम लगाया, व्हाट्सएप पे कितना टाइम लगाया. सो इससे आप अवेयर हो रहे हो, आप माइंडफुल हो रहे हो कि ठीक है मैं यूज तो कर रही हूँ बट कितना यूज कर रही हूँ, क्या मैं लिमिट के अंदर कर रही हूँ. जैसे मैंने अपने लिए एक लिमिट सेट कर रखी है कि मुझे इंस्टाग्राम में एक पॉपअप दे देगा जब मेरा आधे घंटे से ज्यादा लिमिट क्रॉस हो जाएगी. सो आई नो कि अब आधा घंटा हो गया है, आई शुड शट इट ऑफ. तो ऐसे ही अपने लिए थोड़े से आप क्रिएट करेंगे अगर हेल्पफुल टूल्स, तो इट विल बी गुड फॉर यू, जिससे कि आप यूज भी कर सकते हो. बट येस, यू आर अवेयर कि आपको एक लिमिट से ज्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर दिव्या ने बोला कि इसका मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है. एंड बहुत रिसर्चेज आजकल हो रही हैं जो हमें बता रही हैं कि इट एक्चुअली इम्पैक्ट्स योर अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन एज वेल. सो या, which is a wonderful insight. Even I was not aware of it. Thank you so much, Dr. Pooja. A very practical advice how you can handle this double-edged sword of social media, because you cannot keep away from it. It is inevitable. Yet, how to use it in moderation and watch for the content that you're watching on the social media platforms. So, Dr. Rekha, how will you foster good mental health in the young children? I mean, because that is the foundation, that is the base. How you can start building up a good mental health in them? Parenting plays a very important role in developing children. So it's important for them to first of all give a sense of security, love and affection and enough attention to children. एंड समटाइम्स देर आर वर्किंग पेरेंट्स, तो पेरेंट्स जो काम पे जाते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है. उनसे बात करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं कि उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया कि चलो तुम इसमें बिजी हो जाओ और हम अपना काम निपटा लें. ऑफकोर्स वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है पेरेंट्स पे, घर का काम होता है और बाहर का जो भी काम है, लेकिन बच्चों को इन्वॉल्व रखना अपने साथ भी थोड़ा, और उनसे पूछना व्हाट हैपेंड इन द डे, कैसे उनका दिन बीता, और उनको भी खेलने की आदत, कंस्ट्रक्टिव गेम्स खेलने की आदत, उनको क्रिएटिव गेम्स प्रोवाइड करना, और एलोकेट करना अपना टाइम हेल्थ पे भी, एक्सरसाइज पे, खाना ध्यान से खाना, और जब खाना है तो खाने की तरफ देखना, ना कि मोबाइल हाथ में लेके खाना, या जब तक सामने वीडियो नहीं चल रही तो खाना नहीं खाएंगे. तो ऐसी आदतें बच्चों को नहीं डालनी, वो फिर दे गो अ लॉन्ग वे इनटू यंग एज एंड अडल्टहुड. तो दैट्स इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइज द चाइल्ड्स टाइम. बट दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि फाइटिंग पेरेंट्स बच्चों के सामने एक बहुत गलत एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं. ये बच्चों को एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी देती हैं और उनको
एक गलत वे में रिएक्ट करना सिखाती हैं सिचुएशंस को, वो भी एग्रेसिव बन जाते हैं लाइफ में। और दूसरा उनका हर समय दिमाग में चलता रहता है कि कौन राइट है, मम्मी राइट है कि पापा राइट हैं। तो अक्सर मैं कहती हूँ कि अगर आपका कोई इशू है तो प्लीज़ मेक श्योर द चाइल्ड इज़ नॉट इन द लिसनिंग रेंज एट द टाइम यू आर आर्गुइंग or you are having a tiff. Wonderful insight, Dr. Rekha. So it is very important to create a safe environment, to open communication and to indulge into a dialogue with the children so that they feel involved and to enforce a positive, constructive environment in house. So all these things are necessary, and I'm sure various families can relate to it, that these days social media and the gadgets are definitely affecting the mental health of children, and we must try and avoid it as much as possible. So Dr. Pooja, so the mind and body's connection is profound, as you rightly said in the earlier your verdicts, that diet also plays an important role. So how does exercise, diet and everything can bring all together a holistic sense of well-being in the body? Please kindly guide, and what do you have to say about it? Right. So physical health and mental health, we call it like it has a dual relationship. It has impact on each other. We cannot just focus on body. We cannot just focus on mind. And like Dr. Divya said, diet, exercise, they are actually has impact on, like we talked earlier as well, has impact on mental health and physical health. अगर मैं थोड़ा सा एक दो टेक्निकल वर्ड्स का यूज करना चाहती हूँ जिससे कि आपको और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि क्यों. फॉर एग्जाम्पल, देर आर सम न्यूरो केमिकल्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन आवर ब्रेन, सेरोटोनिन, डोपामिन, जो बहुत सारे लोगों को पता भी है वैसे आजकल बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया. तो वो क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो राइट बैलेंस क्रिएट करता है हमारे माइंड में. इसलिए अगर आपने सुना भी होगा तो इफ यू गो टू अ डॉक्टर, इफ यू गो टू अ साइकाइट्रिस्ट, द फर्स्ट थिंग दे विल आल्सो रिकमेंड यू गो फॉर एक्सरसाइज, क्योंकि दवाइयों के साथ साथ वो चीजें भी जरूरी होती हैं टू क्रिएट अ गुड बैलेंस इन आवर माइंड, राइट. एंड देन फिर हम डाइटरी की बात करते हैं, क्यों अच्छा खाना जरूरी होता है. इट हैज इम्पैक्ट ऑन योर मूड, इट हैज इम्पैक्ट ऑन योर अटेंशन. जैसे कि अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, बहुत सारे अडल्ट्स विद ADHD, राइट, जिनको अटेंशन डेफिसिट्स होते हैं, हाइपर एक्टिविटी होती है. तो वी रिकमेंड दैट यू गो फॉर फूड विच इज मोर रिच्ड इन आयरन, मोर रिच्ड इन जिंक. ये चीजें थोड़ी सी अफेक्ट करती है हमारे अटेंशन प्रॉब्लम को. और जिनको हाइपर एक्टिविटी होती है, जिन बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं इस इशू के साथ, तो उनको हम बोलते हैं कि आपको शुगर, प्रोसेस शुगर तो बिल्कुल नहीं देना है ना. और ये सब चीजें इम्पैक्ट क्योंकि हमारी हाइपर एक्टिविटी पे करती हैं, इसीलिए. सो दैट्स हाउ इट इज लिंक्ड. So we now know what food to offer the children who are suffering from attention deficit disorder, and obviously exercise induces endorphins or stimulates endorphins, and definitely it lifts up your mood. So that is a very positive way of keeping a balance and offering a mental health which is more positive and rightly placed inside your body, which is your best abode. So Dr. Rekha, I would want to understand, how does the support system or the community plays an important role in offering mental health? Like Dr. Pooja was also stating an importance of the support system. How can we build that up? How can we be of help to each other? Can you please emphasize some of the key points here? Of course, Dr. Pooja has rightly pointed out support system is very important in everybody's life. In fact, people who are lonely are more prone to falling prey to the stresses, and they are unable to fight it out. And people to build this healthy support system, हम पुराने ज़माने में हमेशा हमारे हम सोचते हैं कि फेस्टिवल्स क्यों आ जाते हैं, ये क्यों होते हैं. दिवाली है, दशहरा है, फिर ये है, फिर वो है, फिर करवा चौथ, सब मिलते हैं. तो अनदर इम्पॉर्टेंट टाइम यू मीट इज बर्थडेज हो गए, एनिवर्सरीज हो गई, चलो मिलते हैं, मनाते हैं.
ये कुछ लोग सोचते हैं जो बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड होते हैं, वो कहते हैं टाइम वेस्ट है। ये टाइम वेस्ट नहीं होता, ये होता है कोहेसिवनेस की फीलिंग सबको देनी, दैट पीपल आर fond of you, they want your presence and they care for you, they want to be together, so that feeling of togetherness comes. So celebrating little events together, that is a thing. Then taking participation in group activities or joining clubs, all this fosters group living or developing relationships, friendships and cohesiveness. And I think that goes a long way in building up a strong support system. And 2-3 friends at least are always, I think, a very important in life. You must develop by give and take. Perhaps one has to give first and not wait for the take always. You know, if nobody is calling you, it's okay. You call somebody if you feel like talking. Don't hesitate, and that's how you will develop your support system. Beautifully expressed, Dr. Rekha. So we now know these celebrations, these occasions when somebody is sharing an invite with you. So these all are the occasions where we can build up a wonderful community which we can benefit each other and nurture a good, positive mental health. So next time when nobody is inviting you, you take a step forward and invite others. And that thought process, definitely, I've also experienced that people always say कि हम ही क्यों बुलाएं हमेशा, कोई और क्यों नहीं बुलाए, because the initiative has to begin from somewhere. And these festivals are there, and I definitely now I can relate why these 13 days when somebody passes away, तो ये 13 दिन भी शायद इसीलिए बनाए होंगे कि so that लोग एक दूसरे का दुख बांट सकें, mental health पे काम कर सकें, and एक अच्छी strong community जिसे हम बोलते हैं वो हम एक साथ मिलके ही foster कर सकते हैं. So Dr. Pooja, now since we are talking so much, what are the therapies? I mean, हम जब थेरेपीज की बात करते हैं, क्या ऐसे थेरेपीज हैं, क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं आजकल टू बिल्ड अप अ गुड मेंटल हेल्थ जब किसी को कोई कंसर्न आ जाए? Right. So, without making it too technical, I would just name few therapies which are very useful and we use a lot with our patients. I would say first of all is CBT, which is cognitive behavioral therapy. It has two components, cognition plus behavior, where we work on the cognition component plus behavior part पर हम काम करते हैं. अब बहुत patients पर हम पहले behavior पे focus करते हैं depending on their issues. बहुत पेशेंट्स पे हम पहले कॉग्निशन पे काम करते हैं. होता क्या है बहुत बारी, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अगर एक एग्जांपल दूं कि प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ की बहुत बारी हमारे थॉट से एसोसिएटेड होती है कि मैं जो सोच रही हूँ उस वजह से मुझे गंदा फील हो रहा है या मुझे गिल्ट फील हो रही है. तो बेसिक जो उसका प्रमाइस है सीबीटी का वो यही है दैट वी वर्क ऑन द कॉग्निशन. अगर मैं बोल रही हूँ कि कल क्या हुआ कि ऑफिस में किसी ने मैंने जिसको हाई करा उसने मुझे वापस से हाई नहीं करा. अब यही चीज मैं इतना ज्यादा ओवर थिंक कर लूंगी कि एम आई अ बैड पर्सन, या ये वो इंसान मुझे पसंद नहीं करता, या क्या इशू है. सो वी वर्क ऑन द थॉट प्रोसेस, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, है ना. उसकी वजह से आपकी फीलिंग्स जो है हर्ट हो रही हैं. सो बेसिक प्रिंसिपल उसका यही है. दूसरा हम बात करते हैं डीबीटी की, डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी. ये मोस्टली हम उन पेशेंट्स के साथ यूज करते हैं जिनको कुछ पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं, स्पेशली बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, या फिर कुछ इमोशनल डिसरेगुलेशन जहां पर होती है. वी आर नॉट एबल टू understand our own emotions and other person's emotion. Third, which has already been talked about, mindfulness. Mindfulness actually is one of my interest area, and it is actually very very useful in our culture because उसके जो roots हैं वो बुद्धिज्म में है ना. बुद्धिज्म is our culture. So mindfulness also has a lot of usefulness these days. Mindfulness breathing, mindfulness scan, all of these things are very useful, we use in these days. A wonderful thing, Dr. Pooja, you've highlighted that we have the roots in our own culture, and such enriched and vast culture we have that we don't have to look here and there, and we have the solutions inside our scriptures and inside us. So you now know whenever you have any concern, there are different therapies like CBT and DBT, and you will have two beautiful ladies to help you out and address your concerns. You can visit any of the wellness setups and you can avail a consultation wherein there will be somebody to guide you
and understand your mental health and take you towards that process which can improve your mental health further. So Dr. Rekha, coping with anxiety and depression is really challenging. So if we do not want to indulge into a help which is actually a medical help or a clinical help, is there any way out wherein day-to-day life we can opt these small methods or strategies wherein we can help ourselves to combat anxiety and depression? One commonly suggested SOS by me, SOS is Save Our Souls, that anxiety जब people feel that कोई एग्जाम देने जा रहा है उस समय सडनली हार्ट बीट बढ़ जाती है, या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई ऐसे इंसान से मिलना है जो कुछ ना कुछ ऐसे कह देते हैं जो अपसेट करता है, तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि इट्स समथिंग लाइक व्हाट हैज नाउ बिकम पॉपुलर एज माइंडफुलनेस, कि टेक डीप ब्रेथ्स, क्लोज योर आइज एंड अलॉन्ग विद इट इम्प्रूव करना है तो इमेजरी भी कर लो, कुछ अच्छी चीज़ का सोचो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनके बारे में इमेजिन करो, और ब्रेथ पे पूरा ध्यान रखना है उस समय। वॉच योर ब्रेथ, कौन से नोस्ट्रिल से जा रहा है, राइट से या लेफ्ट से, और उसको होल्ड करो अपने पेट में एज लॉन्ग एज यू कैन एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ, मेकिंग अ लाउड साउंड, डोंट बॉदर बट यू कैन डू इट एंड इट विल कंट्रोल योर एंजाइटी। एंड एज फार एज डिप्रेशन इज कंसर्न, एक तो ये कि कभी डिम लाइट में नहीं बैठना, यू हैव टू सिट इन ब्राइट लाइट, शाम होते ही you should sit in bright lights. Secondly, try to do regular practice of meditation in the morning. 10 मिनट कम से कम एक्सरसाइज के निकालो रोज सुबह, जो बिजी होते हैं उनको मैं स्पेशल एक्सरसाइज सजेस्ट करती हूँ 10 मिनट्स की या 12 मिनट्स की। एंड देन ऑल्सो if possible take small rounds to the nearby market जहाँ hustle and bustle होती है, and just see what is happening, or say hi and hello to some shopkeeper you have been visiting a lot for a long time, so like that, and sit in the park if you don't want to walk, but do something, look at the birds, take the breeze that is going on, so keep yourself alive, that is the way, or indulge in your hobbies. Developing good hobbies is very important in life. Many people don't have any hobbies at all, and I feel surprised because आजकल सब कहते हैं बस हम फोन में देख लेते हैं, कुछ नेट सर्फिंग कर लेते हैं। Hobby means doing something with your own hands creatively, and they give you a lot of satisfaction and happiness and feeling of achievement, and that goes a long way in thinking positively. हमें positive रहना है, positive सोचना है हमेशा। Definitely. So wonderful strategies Dr. Rekha has shared with us. So first of all, don't be harsh on yourself, accept yourself, love yourself, show compassion towards yourself, and inculcate into hobbies. Do not just keep on surfing the internet. Yes, it is definitely the in thing today, but when you indulge into hobbies and you are utilizing your creative mind, definitely you're working towards a sound and a healthy mind, and it will progress towards a progressive society. So there is always essential that we take one step, because that one step is going to now end up into 100, 200 and will lead you towards a destination. So it's very very important, at least कहीं से शुरुआत करें। अगर आपको ये हॉबी वर्ड सुन के लग रहा है क्यों ऐसा करना है, अब ये एक और नई चीज शुरू करनी है, तो एटलीस्ट स्टार्ट विद वन स्टेप। आई एम श्योर यू विल स्टार्ट लविंग इट ग्रेजुअली एंड यू वुड एंजॉय इट। सो डॉक्टर पूजा, स्टिग्मास बहुत सारे एसोसिएटेड हैं मेंटल हेल्थ को लेके सोसाइटी में। सो हम कैसे इन स्टिग्मास को रिड्यूस कर सकते हैं एंड एक ओपन कन्वर्सेशन जो है वो एनकरेज कर सकते हैं ताकि ये सारे स्टिग्मास से बाहर आया जा सके? Right. It is actually very important, and I would say very sad also that we are in 2023, but अभी भी जो स्टिग्मा है, yes it has reduced, बहुत कम हुआ है, but अभी भी स्टिग्मा मेंटल हेल्थ के अराउंड बहुत ज़्यादा है। पीपल आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करके समझाने की कोशिश करूँ तो मैं 2 लेवल पे डिवाइड कर सकती हूँ। एक तो है मेरा सेल्फ स्टिग्मा और एक है सोसाइटी का स्टिग्मा। सोसाइटी का स्टिग्मा क्या है कि जो
लोग क्या सोचेंगे, है ना, जो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मेरे वर्क प्लेस पे पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे, इस वजह से स्टिग्मा। एक सेल्फ स्टिग्मा है खुद के लिए, वो कैसे कि am I weak? Why do I need to go to a professional? Can I not, like, do I not have my emotions in control? क्या मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर सकती? तो वो सेल्फ स्टिग्मा जो मैंने क्रिएट करा है, नाउ इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नोबडीज फॉल्ट कि सेल्फ स्टिग्मा आया कहाँ से, है ना। हम कंडीशनड हैं, बचपन से हमने यही सुना है पेरेंट्स से या रिश्तेदारों से, रो मत, तो क्या हो गया, छोटी तो बात है, तो क्या हो गया, ठीक हो जाओगे। तो ये हमने कंडीशनिंग हमने बचपन से देखी है, दैट्स वाई वी आर लाइक दिस। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए स्टिग्मा, ऐसे मत करो। आई डोंट बिलीव इन दैट। स्टिग्मा ऑफ कोर्स इज देयर, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कंडीशनिंग ऐसी हुई है, बट सॉल्यूशन भी इसी में ही है। कैसे कि लेट बी अवेयर वॉट इज हैपनिंग, क्या ये स्टिग्मा क्यों है और क्या ये स्टिग्मा मुझे हेल्प करेगा, या फिर इफ आई गो टू अ प्रोफेशनल सीक हेल्प तो वो मुझे हेल्प करेगा, है ना। ऑब्वियसली इफ यू गो टू अ प्रोफेशनल, इफ यू गो टू अ एक्सपर्ट, वो आपको ज्यादा मदद कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जब आप अपने में ही बैठे हुए हो स्टिग्मा लेकर, यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीबडी। सो वी नीड टू लुक फॉर दैट्स व्हाट आई थिंक। Definitely a wonderful advice Dr. Pooja has given us. Stigmas are there, but you have to be self-aware and you have to rise above all this and understand what is right for you, what is good for your own mental health and body. And definitely there is no harm in seeking help. We should empathize with each other, and that is how we can win over this thing. So Dr. Rekha, हम सब लोग ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बट कोई ना कोई कभी ना कभी सेल्फ डाउट में डेफिनेटली आ जाता है एंड नेगेटिव जोन में बहुत इजीली चले जाते हैं हम लोग। तो जब भी हम कभी ऐसी नेगेटिव जोन में जाएं या फिर हम सेल्फ डाउट में जाएं, तो क्या ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स हैं? जैसे आपने पहले मुझे बताया कि आप अपनी ब्रेथ पे कंसंट्रेट कीजिए, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नेगेटिव जोन में जाने पे, या जब हम एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, तो हम अपने आप को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं? इन शॉर्ट कहूंगी, जैसे काउंट योर ब्लेसिंग्स। सबसे पहले गिनना शुरू करें कि आपके पास क्या है, क्या क्या आपको मिला है। अडॉप्टिंग एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट इज वन थिंग। कुछ चीज़ों को हम महसूस ही नहीं करते कि हमारे पास है, हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं, ये भी बड़ी गनीमत है जब आप किसी ब्लाइंड पर्सन को देखते हो तो देखते हो कि यू आर सो रिच। सिमिलरली हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, अगर सलामत है, जो भी है, व्हाटएवर है, तो उस चीज़ को आपकी बीइंग में है, तो उसके लिए आप ग्रेटफुल फील करें। यू विल फील वेरी वेरी लिफ्टेड अप एंड एनकरेज कि यस आई एम ब्लेस्ड। दैट फीलिंग यू मस्ट गेट। सेकेंडली, अडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ फॉरगिवनेस। पुरानी चीज़ें दिमाग में नॉक करती रहती हैं, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, या उसने मेरे साथ ऐसा कैसा कर दिया, बहुत अपसेटनेस फील होती है उस बात की। तो उसके लिए फॉरगिवनेस का एटीट्यूड अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप बढ़ नहीं पाएंगे लाइफ में, अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, और उससे आप नेगेटिविटी से बाहर आ पाएंगे। एंड बी पॉजिटिव, सो लुक फॉरवर्ड टू एंड फोकस ऑन ओनली ऑन द पॉजिटिव। अब ये ग्लास है तो थोड़ा तो है ना पानी, लेकिन एक दूसरा एटीट्यूड है कि बाकी हवा है, तो बिल्कुल ये खाली कहीं से भी नहीं है। तो ये फोकस अपना जो है पॉजिटिविटी में रखो, लोगों में पॉजिटिव चीजें देखें। हंस बने मोती चुने, कौवा बन के कोयले मत चुने। तो ट्राई टू अवॉइड क्रिटिसाइजिंग थिंग्स एंड पीपल एंड बी इन अ पॉजिटिव मोड, एंड दैट विल मेक यू हैप्पी ऑलवेज। सो हंस बने, कौवा मत बने, एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये हमारे स्क्रिप्चर्स भी सिखाते हैं। जैसा डॉक्टर पूजा ने बोला, इनफैक्ट बुद्धिज्म भी हमारा जो की प्रिंसिपल है बुद्धिज्म का, द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आई एम रियली थैंकफुल दैट आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ट्रूली बिलीव्स इन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड वी ऑल मस्ट इनकलकेट दैट
जो आपको दिया है अगर आप उसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे तो डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई होगा. बहुत सारे धर्म गुरु भी ये बताते हैं शुक्राना अदा कीजिए. दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली मल्टीप्लाई द ब्लेसिंग्स दैट हैज बीन शावर्ड ऑन यू. So before we wrap up, I would request all viewers to please keep showering the questions. We will take up after the last question. I do not want to end this talk because there's a lot I want to understand from these two beautiful ladies. And but before that, there are a lot of questions that we already have, and we would want to take the questions one by one. So Dr. Pooja, one last thing. So in a marital relationship, keeping a healthy mind is very, very important. So how would you guide the new people who are coming together in a relationship? They can support each other in building up a wonderful family and supporting each other's mental health so that there is a progressive society. Definitely. So I think one of the very important thing I would say is communication. Now we all know communication is important, but communication is one thing, effective communication is another. We all we all know what communication is, but I think we somewhere lack when it comes to effective communication. What is effective communication? It's very simple yet very important. आप जो बोल रहे हैं और जो सामने वाला बोल रहा है उसकी आप ध्यान से सुने कि सामने वाला एक्चुअली बोल क्या रहा है. सुनना, active listening, just not listening, active listening, reflecting upon what other person said. सामने वाले आपके पार्टनर ने क्या बोला. बहुत बारी आते हैं कपल्स, वो बोलते हैं कि मैं बोलती हूँ पर ये सुनते नहीं है. फिर है ना, हस्बैंड भी यही फील करते हैं कि आई से द सेम थिंग बट वाइफ डज नॉट लिसन. बच्चे यही बोलते हैं कि पेरेंट्स आर नॉट लिसनिंग. व्हाई इज इट हैपनिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी आर नॉट गिविंग एनफ टाइम टू ईच अदर. आजकल एक मील साथ में करना भी एक बहुत बड़ी बात हो गई है, विच वॉज वेरी बेसिक. पहले बहुत बेसिक था, हम अपने पेरेंट्स के साथ 2 मील 3 मील आराम से खा लेते थे, बट आजकल ऐसा नहीं हो पाता. तो ट्राई टू डू दैट एज मच एज पॉसिबल. टेक सम टाइम आउट. बहुत सारे लोग इसमें प्रेस्टीज मानते हैं कि मैंने 4 महीने से छुट्टी नहीं ली, मैंने एक भी संडे नहीं लिया. प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर यू. इट इज एक्चुअली वेरी वेरी बैड. टेक योर हॉलीडेज, go somewhere, spend time with each other. You will notice that ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बहुत एक बड़ा लॉन्ग रन में एक अच्छा इम्पैक्ट देंगी. So I think you should focus on that. Dr. Rekha, I would want to understand your perspective also, that since you are obviously with your 45 years of experience and being into a marital relationship yourself, how the couples can take care of their mental health and nurture an environment which is fruitful for the child also and for themselves also, because right now everybody is working, even the females are working. How constructively we can understand and support each other? Doctor, please throw some light on this. I know it's easier said than done. It's a very tough job nowadays, especially because it's most important to understand the needs of the partner. That's very important because and even otherwise हमारी रिसर्च ने ये बताया है कि मेल और फीमेल ब्रेन्स की थोड़ी डेवलपमेंट भी अलग है, उनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग है. तो द वे दे रिएक्ट इमोशनली इज डिफरेंट फॉर मेन एंड वुमेन, बट देयर इज नो डर्थ ऑफ एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, व्हाट द अदर पर्सन इज एक्सपेक्टिंग. बट अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक मिनिमम लेवल पे रखना, ये एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है. और ट्राई टू केयर फॉर ईच अदर एंड शेयर विद ईच अदर. जैसे डॉक्टर पूजा ने बहुत ज़रूरी ये बात कही है कि ट्राई टू हैव सम मील विद ईच अदर. कई घरों में मैंने देखा है कि सब अपने अपने कमरे में खाना खाते हैं. अरे भाई क्यों? क्योंकि अपना अपना प्रोग्राम टीवी पे अलग अलग देखना है. दिस इज नॉट द वे. एटलीस्ट एक टाइम कुछ घरों में पक्का होता है कि सबको टाइम पे पहुंचना है. तो कुछ लोग तो लकी होते हैं कि लंच टाइम पे भी सब मैनेज कर लेते हैं, बीच में से आ जाते हैं. और डिनर तो फिर भी पॉसिबल करना चाहिए इफ़ यू आर नॉट वर्किंग वेरी लेट. नहीं तो ब्रेकफास्ट 1 मील इन अ डे. अदरवाइज सैटरडे संडे कोई दिन तो रखें. और जैसे इन्होंने बोला हॉलीडे इम्पॉर्टेंट है. अगर हॉलीडे नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो वीकेंड्स में अपने घर में ही इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे टीवी लगा के कुछ देख सकते हैं या कुछ भी. दैट इज देयर.
एंड हस्बैंड वाइफ भी, हस्बैंड को मैच पसंद है, वाइफ को मैच पसंद नहीं, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की आदत होनी चाहिए। या हस्बैंड को वॉर फिल्म पसंद है, वाइफ को इमोशनल फिल्म पसंद है, भाई चुन लो कि आधी टाइम तुम्हारी चॉइस से चलेंगे, आधी टाइम मेरी चॉइस से चलेंगे। लेकिन इकट्ठे जाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है, इकट्ठे पॉपकॉर्न लेके खाओ या ना भी खाओ, व्हाटएवर। तो ये कंपेनियनशिप देना, एक दूसरे की वेट करना अच्छी चीज़ों के लिए, या कुछ अच्छा हो तो एक दूसरे के लिए बचा के रखना कि दिस इज़ योर शेयर एंड यू हैव टू शो योर लव, यू हैव टू एक्सप्रेस। Just thinking that you love is not enough. So that is very important. Definitely. So you have to show your love and you have to express yourself. And I am sure we all are trying our level best, but a little more effort and a little more empathy towards the partner is going to take it a long way. So we will now take our first question. So Mr. Joker is asking, how long will it take to cure depression or anxiety? I mean, how long does it take to cure anxiety and depression? And can we cure them without taking pills? So, Dr. Pooja, would you like to please answer? I mean, Sure. So I think to answer first part of the question is कि how long will it take? It actually depends on a lot of factors, है ना। अगर हम डिप्रेशन की बात करें, एंजाइटी की बात करें, तो सबके अपने अपने सिवियरिटी लेवल होते हैं। फर्स्ट वी नीड टू चेक दैट आर यू एट माइल्ड लेवल, मॉडरेट और सीवियर, उस पर ही हमारा डिपेंड करता है। बट अगर मैं ऑन एन एवरेज लूँ तो अगर अब हम बिना दवाई के हम ट्रीट कर रहे हैं, जस्ट हम थेरेपीज ले रहे हैं, हम लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 6 to 8 months लेके चलिए, दैट यू नो इट विल टेक दैट मच टाइम। एंड टू आंसर लेटर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज क्या हम पिल्स के बिना ट्रीट कर सकते हैं? अगेन सिवियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हमारा सिवियरिटी लेवल सीवियर है या मॉडरेट टू सीवियर है तो हम बिना दवाई के रिजल्ट्स नहीं हमें मिलेंगे। यू नीड टू सीक अ प्रॉपर साइकाट्रिक कंसल्टेशन। बट कहीं आप माइल्ड हैं, माइल्ड टू मॉडरेट लेवल पर हैं, तो हम विदाउट पिल्स भी ट्रीट कर सकते हैं उसको। Okay, so डॉक्टर कहना है बातें या प्लीज बिकॉज कई लोग जैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं तो पहले कहते हैं कि कितना टाइम लगेगा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? तो मेरा आंसर ये होता है कि डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू विल कोऑपरेट, कितनी रेजिलियंस लेवल है उसकी। और दूसरा, अगर बहुत सीवियर, जैसे डॉक्टर पूजा ने राइटली बोला कि बहुत सीवियर हो, तो कुछ लोगों को वो होता है कि मैं दवाई खा के दवाई से साइड इफेक्ट होंगे और मैं एडिक्ट हो जाऊंगा, तो वो बहुत डरते हैं। वो कहते हैं सिर्फ काउंसलिंग से ठीक कर दीजिए मैडम। तो मैं बोलती हूँ कि देखो आपके वो न्यूरो दिमाग के जो केमिकल्स हैं वो थोड़े अगर बिगड़े हुए हैं, हालत बहुत खराब है, तो इन केमिकल्स को थोड़ा लेवल पे ले आए। इनिशियल आप साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, उनको बैलेंस पे आए, फिर आप काउंसलिंग टेबल पे ठीक से मेरी बात समझ पाएंगे और अपनी मेरे से बता पाएंगे और हम एक राइट पाथ पे चल पाएंगे। So let the doctor decide what is the right path for you, whether it is taking pills or not. Like we do in a physical health ailment, we leave it on the doctor, and at times we avoid medicine. So yes, we can have a mix of both or try to escape it. But obviously a professional guidance always helps and takes us a long way. So Sarita ma'am is asking, कभी पैनिक अटैक्स आते हैं तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसको? एकदम से कोई सिचुएशन आ गई एंड आप जब एकदम से पैनिक कर जाते हैं तो आप उसको कैसे डील कर सकते हैं? सो डॉक्टर पूजा। श्योर। सो पैनिक अटैक, एक तो अगेन I actually believe in clarification of things, so my answer always starts with that. Lot of adolescents especially comes to me and they say कि मैम पैनिक अटैक आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैनिक अटैक, व्हाट इज एंजाइटी अटैक। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, है ना। बट अगर मैम बोल रहे हैं कि पैनिक अटैक है, सो आई विल गेट इनटू दैट। एंड पैनिक अटैक का थोड़ा सा मैं एक टेक्निक बताना चाहूंगी। वी कॉल इट ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने सारे सेंसेस को एंगेज करने की कोशिश करते हैं।
5 4 3 2 1 है ना, 5 चीजें जैसे कि आप जो आसपास देख सकते हैं अपने, जैसे कि आप फैन देख सकते हैं, विंडो देख सकते हैं, टेबल देख सकते हैं, ऐसी 5 चीजें आपको देखनी है। 4 चीजें जो आप सुन सकते हैं, ट्रैफिक की आवाज है या एसी की आवाज है, इससे हमारा हियरिंग जो सेंस है वो इंगेज हो जाता है, ठीक है। फिर 3 चीजें जो आप टच कर सकते हैं, मान लीजिए टेबल है या फिर क्लोथ है आपका जो आपने पहना हुआ है, या जो भी आसपास चीजें, 3 चीजें आप टच कर सकते हैं। फिर 2 चीजें जो आप स्मेल कर सकते हो, जैसे कि आपका परफ्यूम जो आपने पहना हुआ है उसको आप स्मेल कर सकते हो, या आसपास कुछ खाना बन रहा है तो उसकी स्मेल आ रही है। एक चीज जो आप टेस्ट कर सकते हो, हमारे आसपास हर किसी के आसपास कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो वो हमारा जो ये टेस्ट जो सेंस है वो इंगेज हो जाता है। तो 5 4 3 2 1 एक्सरसाइज भी बोलते हैं इसको, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। जब हम एकदम से पैनिक करते हैं तो फर्स्ट फीलिंग ये होती है, आई हैव लॉस्ट कंट्रोल, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, आई डोंट नो वेयर एम आई। सो ये क्या करती है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ग्राउंडिंग, आपको ग्राउंड करती है, आपको वापस से अपने सेंसेस में लेकर आती है। फर्स्ट सेकेंड टाइम थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, यू विल बी लाइक कि क्यों कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, बट ट्रस्ट मी, पेशेंट्स हैव टोल्ड मी दैट 3-4 बारी के बाद ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है। सो वी कैन डू दैट। That's such a amazing, simple yet so true to the roots. I mean, we all know हमारी इंद्रियां, हमारे जो 5 senses हैं, उनको अगर हम कंट्रोल कर लें या हम उनको अपने हिसाब से जब यूज कर सकते हैं या कर पाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो पूरी सारे चक्रास हैं और हमारा पूरा ऑरा है वो एक अलाइनमेंट में आ जाता है। सच अ वंडरफुल एंड अ सिंपल टेक्निक, डॉक्टर। Amazing. Thank you so much. We would want to hear you more, but we have a time constraint, and we are here at Bright Talks by Pacholi Aesthetics and Wellness, an initiative by Dr. Preeti Seth, and we were talking to Dr. Rekha Malhotra with her dedicated 45 years of practice, and young, dynamic, beautiful Dr. Pooja Gupta, who is a clinical psychologist at Rainbow Children's Hospital, New Delhi. So that was a lovely session with both of you. Thank you so much for joining us, and stay tuned for yet another episode of Bright Talks with Pacholi Aesthetics and Wellness, an initiative by Dr. Preeti Seth, where we will be discussing a mind-boggling thing. Yes, क्यों पूजा करते हैं, क्यों हम दिया जलाते हैं, क्यों हम व्रत रखते हैं, नवरात्रे क्यों 4 बार आते हैं और 2 बार हम उजागर रूप से मनाते हैं। Some very simple and everyday's fact, yet we never go in detail about it. So if you're interested in knowing more about it, stay tuned and connect with us on 13th of October, where our very own Dr. Preeti Seth, she will be sharing some insights about this. Namaskar. Thank you so much.